मिस्टर सलील सर, मेरे feel like a मेंटर, parent today. मैं आपको भाई बोलता हूँ। You call anything you want. Radio happened because मैं बोर हो गया था दिल्ली से. पहला इंटरव्यू किसके साथ किया था, आपको कुछ साथ याद किया. है? But साहब saw me doing an interview and he said कि यार just ask him if he'll do आवारापन. You have to understand when people say nepotism ना, we have faced nepotism. ये बच्चों ने आज कोई nepotism face नहीं किया है. I was the first outside actor of television to do the kind of role that I did for Avarapan. Nobody got roles in films. He said, no bro, the film is about you, Imran Hashmi and Ashutosh Rana. और आशुतोष राणा का छोटा रोल है. मिलाप ज़वेरी ने बोला था कि यार just tell me when you have dates, we'll do another film. Ranbir had seen Avarapan at that time. I remember he had done Savaria. I didn't have to introduce myself to any film actor. They all spoke to me like, भाई तू already पहुंच चुका है वहाँ पे. हम तो अपनी जर्नी पे है. Like this, I started trailer launches in India. Karan called me and said कि यार can you do Student of the Year? And I was launched Alia and Siddharth and Varun to the public first time. Karan was there and he said, you are not going anywhere. You are now booked for 2 months with us. He said, because I need you to sell them. They used to call Siddharth Malhotra, Puneet Malhotra का भाई, Mahesh Bhatt की बेटी, David Dhawan का बेटा. Nobody knew them. Karan actually मेरी दुकान बंद की. He started hosting himself. Yeah, Karan just started hosting himself only then. Trailer launches भी खुद ही करने लग गए वो. Salman Khan is the only one that I do now. He doesn't listen to too many people on stage. He listens to me. हम तो प्रे करते थे कि 10 शो साल के हो जाए सलमान के साथ, नई गाड़ी आ जाएगी. So it's beautiful to be with him. But I think लोग बहुत डरते हैं भाई से, on stage. There's an interview of mine that I did for Bajrangi Bhaijaan, which is to date, I think, the best interview Salman has ever given. And I do love it. I really worked at close quarters with him, with Shah Rukh sir, with everyone. There is nobody who's like Salman Khan. But I've had the funnest times on stage with him, man. Matlab, nobody can do firki like he can. Nobody. बेटा लेकिन जब आप जिस रास्ते पर चल रहे हो ना, वो रोड हमने बनाई है. मतलब मैं आपको क्या बताऊं, the stardom that we have seen ना, nobody can see now. 20,000 औरतें आई थी, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए थे. We didn't need followers. We used to run to Juhu Beach to have a चुस्की. किसी ने देख लिया भाई, वही खत्म. हम एयरपोर्ट पर जाते थे तो लाइनें नहीं बन जाती थी हमारे लिए यार. So this is a very different world और ये गेम आप नहीं खेलो. Everything is fake. 80% of every single actor, every single actor has bought followers. Every single one of them. The only guys that have the true real followers are the YouTubers and the gamers. If you don't crack the money code in India, then you don't deserve to live as a creator. I'm a dash millionaire. बस मेरा वही लाइफ का मंत्र है अभी. There is magic in his voice that touches every heart. A superstar of radio, setting trends from the start. Today we have Salil Acharya in the house. Let's dive into his journey and hear what it's all about. Salil Acharya, जो कि मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैंने मेरी रेडियो की जर्नी उनके साथ शुरू की थी और उनकी लाइफ ना बहुत ही अप्स के साथ ही रही है, डाउन तो उन्होंने कभी देखा नहीं है. तो उनके साथ पॉडकास्ट करके मुझे बहुत कुछ उनके बारे में जानने को मिला और उनके अलावा ये इंडस्ट्री में काम कैसे होता है वो सब जानने को मिला. सो ये इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक एवरीवन टू प्लीज लाइक, शेयर and subscribe to my channel for more content like that. Finally, Mr. Salil sir, मेरे मेंटर, parent today. 7 साल पहले सलील सर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था रेडियो की वर्ल्ड से और मैं इनके लिए बिहाइंड द सीन्स रह के मैंने काफी काम किया है. पहली बार मैं उनके सामने उनके साथ बैठ के उनसे बात कर रहा हूँ. इनको हमेशा मैंने रेडियो के सामने देखा है बात करते हुए, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज. मैं हमेशा से जानना चाहता था कि सलील सर की लाइफ क्या रही है, उनकी क्या जर्नी रही है. वो औरों की इंटरव्यू लेते हैं, मैं कहा एक दिन ना मैं सलील सर का खुद इंटरव्यू लूंगा. So thank you so much Salil sir for coming for my show. Calling me sir. हर किसी की जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव आते, right? But I think so I'm so happy to be with you here. We took one phone call and it doesn't actually require a phone call also. But one of the reasons I've been able to reach here, मेरी जो ये जर्नी रही है, जो कुछ लोग थोड़ा सा सक्सेसफुल मान सकते हैं, is because of people like him. There's a branch out जो आपको जरूरत पड़ती है लाइफ में कि अगर आप कुछ और करना चाहते हो, you need a lot of people that just listen to you blindly. And he is one of them. जिन्होंने कभी मुझे क्वेश्चन नहीं किया. मैंने कहा मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कभी सवाल नहीं किए. तो ये तुम्हारे ना सवाल करने की वजह से ही मेरा बहुत फायदा हुआ और कई साल के बाद भी
जब इसको मैं और थोड़ा काम दे पाया, इट्स फैंटास्टिक, इज डूइंग सो वेल फॉर हिमसेल्फ राइट नाउ, सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई थिंक यू सरपास्ड माय एक्सपेक्टेशंस आल्सो एज टू मुझे कभी आई ऑलवेज डू यू वेरी फोकस्ड, बट जिस मकाम तक तुम पहुंच चुके हो, बड़े बड़े लोगों के साथ जो काम कर चुके हो, यू हैव सरपास्ड ऑल आवर एक्सपेक्टेशंस एंड ही इज अ वेरी गुड डांसर आल्सो, एक दिन इसको डांस भी करवाएंगे। Yes. सो मैं सलील सर का सॉरी मैं आपको भाई बोलता हूँ। You call anything you want. सो मैं भाई के साथ इनिशियली जब मैंने रेडियो करना शुरू किया था तो मेरा एक अलग ही पहले से चार्म रहा था कि मुझे रेडियो में करना है। और रेडियो के अलावा मैंने उनको ट्रेलर लॉन्चेस पे मैंने सलील सर को खुद असिस्ट किया वहां जाके। तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस एकदम एक मैजिकल मोमेंट रहा था। पहले मुझे लग रहा था ठीक है, मैं रूटीन है, मैं भाई के साथ रोज उठ रहा बैठ रहा हूँ, रोज ऑफिस में जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। पहली बार मुझे जब हम सिम्बा की स्क्रीनिंग के लिए गए थे तो तब हमको एक किसी ने रोका था कि हम भाग रहे थे कि हमको स्क्रीनिंग अटेंड करनी है। एक किसी ने रोका कि हमको फोटो चाहिए। वो पहला मोमेंट मुझे लगा कि एक्चुअली मैं किसी के साथ घूम रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। फिर इसके बाद जब हमने वाशी के अंदर एक शो किया था तो वहां पे जो क्राउड था और जैसे आपने क्राउड को संभाला था, तो मुझे वही जानना है आप क्राउड को ऐसे हैंडल कैसे करते हो आप? So, Zubi, I have been in front of people and a camera since I was 6 years old. तो मैं 6 साल की उम्र से I'm 44 now. So 38 years I've been in front of people and a camera. And जैसे कि लोगों को जैसे क्राउड दिखता है, मुझे ऐसा नहीं दिखता है। मुझे कभी भी स्टेज से ना डर था, ना मुझे बड़े क्राउड से डर था। और मुझे ऑलवेज ऐसा लगता था कि जिस पूरा क्राउड मेरी मुट्ठी में है। चाहे I mean the biggest crowd I've done a show with is about 26,000. It was a Stand Chart marathon. 26,000 people को मैंने कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी खुदवाया है। ये अक्षय कुमार सर was with me on stage that time, I remember. And it was very easy for me to do that. और मैंने क्राउड को डांटा भी बहुत है। मैं शायद इकलौता पहला ऐसे होस्ट था जो डांटते रहता था उनको, मेरी बात नहीं सुनते थे। So I think I've always had that with, ऐसे बचपन से ही था। It's not like it happened later जब मैं एक प्रोफेशनल बना। Even when I was not a professional, it was like this also. And बहुत easy था। कुछ लोग का ऐसे होता है, for me it was also very easy. And ऐसे ही चलते चलेगा यार। School plays, ये radio, TV, shows, crowds, very easy. And live stage का एक feel ही अलग रहता है। So it just got better and better. भाई आपको स्टार्टिंग से रेडियो ही करना था? नहीं, तो यार मैं स्कूल में बहुत अच्छा करता था। So economics honors, Delhi University में, well I would have almost gone for London School of Economics. वो फीस बहुत हाई होती है, तो दैट माय पेरेंट्स ने लो। तो मैं टेनिस भी खेलता था, काफी अच्छा खेलता था। तो स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इट वाज, एंड आई वाज एक्चुअली ब्लेस्ड विद समथिंग जो चीटिंग है बेसिकली। मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। तो मैं ना अगर एक अखबार पढ़ लूं या फिर कोई किताब पढ़ लूं, आप मुझे बोले 17वें पेज पर 7वीं लाइन क्या है, तो मैं बोल दूंगा आपको। एंड इट वाज चीटिंग एक्चुअली। तो उसकी वजह से आई ऑलवेज टॉप स्कूल एंड आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स ऑल द टाइम। बट जब मैं कॉलेज के बाद आया, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा था, व्हिच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, और इट इज कंसिडर्ड द टफेस्ट कोर्स इन इंडिया। ओके, एमआईटी बेसिकली ने बोला था कि एमआईटी के बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द सेकंड टफेस्ट कोर्स इन अंडर ग्रेजुएशन इन इंडिया। मैंने कहा ये सब करना नहीं मुझे, यू नो, सो देयर वाज नो पॉइंट इन डूइंग दैट। रेडियो तो हैपेंड बाय एक्सीडेंट बिकॉज मिस्टर परिगी थे बेनेटन कोलमन से, मैं अपने दोस्त शिव पंडित को ले आ रहा था। आज एक एक्टर अच्छा हो गया। बोथ ऑफ अस वेंट फॉर अ वॉइस टेस्ट, और उसमें ऐसे था 4-5 शब्द दिए थे उन्होंने। तो उसमें से जो तमाम लोग आए हुए थे, कोई भी ग्रॉ प्री अच्छी तरह बोल नहीं पाया था। ये सब ग्रैंड प्रिक्स बोल के आ गए थे। मैं ग्रॉ प्री बोला, ये बोला, 2-4 ऐसे शब्द बोले, तो वो तो पागल हो गए, बोले कि यार ये तो इंग्लिश ऐसी बोल रहा है, हिंदी ऐसी बोल रहा है। तो इमीडिएटली वो ऐसे हो गया। रेडियो हैपेंड बिकॉज मैं बोर हो गया था दिल्ली से। तो जब उन्होंने सैलरी ऑफर की, मैंने कहा इतनी चाहिए मुझे। कहते पागल हो गए हो, इतनी कैसे मांग रहे हो? But I just asked for it and they gave it, and I came to Bombay, and that's how Radio Mirchi was launched in Bombay, and I was India's first private FM Hindi jock. जीतुराज उस समय दोपहर करता था, सुबह इंग्लिश होता था, 2002, and they launched Bumper to Bumper with me in the evening. It was absolute rubbish, मुझे कुछ पता नहीं था, but वो मैं आ गया और बस हो गया चालू। पहला इंटरव्यू किसके साथ किया था, आपको कुछ याद है? साथिया रानी मुखर्जी एंड विवेक वर लाइव विद मी, और लाइव था आई रिमेम्बर। और रानी से मैंने कुछ सवाल किए थे, मैंने कुछ बोलना है, वो बहुत डर गई,
कहती मैं नहीं बोलूंगी। मैंने कहा लाइव रेडियो पर ऐसे क्या बोल रहे हो यार, यू हैव टू स्पीक। तो विवेक बीच में आ गया था, कहता है यार यू हैव टू स्पीक। तो रानी ने लाइव इंटरव्यू में बोला कि मुझे बोलना ही नहीं है, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ, ऐसे बोल के वो चली गई। मैं तो लाइव था, मैंने कहा अब क्या करना है, ये तो चलेगी। बट आपने फिर इंटरव्यू कंटिन्यू किया था, बट दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू ऑन रेडियो विद देम। उसके कुछ दिन बाद आई डिड माय फर्स्ट टेलीविजन इंटरव्यूज फॉर बी फॉर यू, वाज कैलाश खेर, अल्लाह के बंदे उसका आया था। क्लियो आइसेक्स एक लड़की थी, शी वाज अ वेरी वेरी बिग एक्ट्रेस एट दैट टाइम, मतलब वो मॉडल थी बहुत अच्छी, संजय दत्त सर के साथ पिक्चर करी थी। और प्रियांशु चैटर्जी, दीज वर माय फर्स्ट 3 टेलीविजन इंटरव्यूज। नागी विला में हमने शूट किया था जुहू में, दिस वाज आल्सो इन 2002। और कैलाश मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बना था, क्योंकि वो बस ऐसे ही वो लिटरली अल्लाह के बंदे बजा के आ रहा था और वो सडनली ऐसे अपने ऑटो में आया। और एक बहुत कमाल की कहानी है कैलाश की, 2002 में ऑटो में आया मुझसे पहले मिलने के लिए। 2012-13 में सोनी की 10 साल की पार्टी हो रही थी, एंड दिस वाज एट हायट, और उसकी 7 सीरीज आई और हम दोनों बाहर खड़े थे। मैंने कहा भाई, मतलब फ्रॉम एन ऑटो टू अ 7 सीरीज, एंड ही वाज स्टिल सो हम्बल यार। एंड टुडे ऑफ कोर्स ही इज बिकम वेरी बिग, पद्मश्री एंड ऑल दैट, ही इज, बट हिज क्राफ्ट एंड हिज कमांड ओवर म्यूजिक वाज फैंटास्टिक। तो मैं ऐसे इतने बड़े लोगों से मिलते आया हूं, तो आपको समझ में आता है कि आप क्या हो यार, यू नो, दीस पीपल आर जस्ट सो अमेजिंग। और सबकी ऐसी जर्नी रही है। श्रेयस तलपड़े की ऐसी स्टोरी थी, पहले ऑटो से मिलने आया था मुझे जब वो इकबाल कर रहा था। जब वो शाहरुख खान की पिक्चर के लिए आया था, दीपिका पादुकोण वाली, तब वो अपनी मर्सिडीज में आया और फिल्मिस्तान में मुझसे मिलने। सो इट वाज सिमिलर, यू नो, आई टू सी दैट जर्नी। और उस समय तो घर तो दिखते नहीं थे ना, तो गाड़ियों के साथ जो चेंज होता था उस समय दिखते थे। सो एवरीवनस जर्नी वाज ऑलवेज लाइक दैट। सो यू, आई वाज जस्ट अ स्मॉल पार्ट एंड आई सॉ ऑल दीस जर्नीज इन फ्रंट ऑफ मी एंड बिकेम लवली। आप पहले एक शो करते थे जिसके अंदर आपके साथ एक को होस्ट भी होती थी, अर्चना। तो आप क्या प्रेफर करते हैं, सोलो या फिर किसी के साथ, और क्या डायनामिक्स रहता है? So I don't think I could have done a show with anybody else but Archana, because it's like a marriage. कोई marriage 50-50 नहीं होता, 70-30 होता है। I think with Archana it was 80-20, but she just listened to everything I said. You know, so that is the reason why that radio partnership worked very well. And you need a very understanding person. So शो का डायरेक्शन एक आदमी का विजन होता है, दो लोगों का विजन नहीं होता है, ठीक है। फिल्म में ऐसे हो सकता है, लेकिन अदरवाइज नहीं होता है। So the show was my show, and Archana was with me on that show, and that's why it was great, and the chemistry was great, and I think it worked very well. जैसे वो उनका वो चलता था ना, दिल, सलील का दिमाग और अर्चना का दिल, it worked very well. But जिस तरह वो काम करके, I think it changed the radio landscape of this country, because it was the first double jog show. इससे पहले जग्गू तराना थे, इंग्लिश शो करते थे, 92 पॉइंट गो पे करते थे, but that was again a very English related show. हिंदी में कभी भी कोई डबल जॉक शो आज तक अच्छा नहीं चला था। And then it started in 2008-9, और फिर रेडियो का हुलिया ही बदल गया। It became very popular and it worked very well. और yeah, the rest is history. वो आपने मेरे को एक बार बताया था कि सलमान खान कहते थे कि आप रेडियो के मियाँ बीवी हैं। बहुत सारे लोगों को, करीना को तो ये भी लगता था कि हमारा अफेयर चल रहा है, और मैं आज तक मैं कभी भी उसको बेटी की नजरों से देखा है मैंने ऑलमोस्ट, जबकि वो उससे 3 साल बड़ी है। But it was never like that. It was a beautiful relationship and it still is. बहुत डांटा है मैंने उसको, बहुत ज्यादा। So I think she developed. She's a lovely voice and lovely girl. I think she developed as an artist a lot more. But I used her a lot in my shows also. So it was not just RJing, right? मैं अपने hosting shows में भी बहुत use करता था अर्चना को. A lot of things I used her, which was very very good, and I think that combination was great. ठीक है, तो रेडियो के बाद सर आपने फिल्मों के अंदर आपका एंट्री कैसे हुआ था? So you know, actually रेडियो तो मैंने 1-1.5 साल ही किया था पहले। फिर बहुत क्रेजी स्टोरी है। मैं MTV इमेज की पार्टी में था, JW मैरिट के बाथरूम में था मैं, बट मैं लेडीज बाथरूम में चले गया था बाय मिस्टेक, क्योंकि ऐसा माहौल कुछ ऐसा था। और वहां मुझे इशिता मिली, इलारन की बेटी, और मैंने पता नहीं क्या बातें की उसके साथ आधे घंटे, बट मैंने ऐसी कुछ बातें कर ली उसके साथ में कि अगले दिन मुझे B4U का फोन आया और वो बोला विल यू लाइक टू VJ फॉर अस। मैंने कहा आप पागल हो क्या? सो दोज आर डेज आई हैव नॉट, those are days when हम लोग you know, single in Bombay, so we all used to drink and all that. So I didn't even remember the conversation. And I remember at the age of 22, and I telling Dipali, who was then the head of B4U, saying, "You can't afford me." And she said, "What? Who is this person?" So they made me a crazy offer at that time. You know, and the kind of money that I was being offered was not normal for a random person. मैंने obviously yes बोल दिया.
And what happened was that Before You then started, and AXN Hot and Wild happened, which I won a contest. And then I met Gurshil Walia, who's the head of Sony. I mean, she was head of the Sony content division. And wahan se ye meri life I started with Vipul Shah. And suddenly my hoardings were all over Bombay in 2004, and it was just madness. And I then immediately after 6 months, then I was doing uh, Kavyanjali, I was doing Kasauti, and Ekta was saying that I was the 5 faces of the year and magazine articles. It was a lot for a 24-year-old to take in. You have to understand, मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीजों में. I was an economics boy, was doing very chilled out. I came from a family that was lawyers and police officers and bureaucrats. और वहां पे ये आदमी आके ये सडनली इस दुनिया में आ गया है. And it continued for a while. Of course, there were a lot of things that happened in routine. Long story short, 2007, Mr. Bhatt saw an interview of mine. Bhatt Saab saw me doing an interview and he said कि यार just ask him if he'll do आवारापन. और मुझे याद है कि मैं JW Marriott के सामने Baskin Robbins है, उसके नीचे was where they were doing the screen test. तो मोहित नहीं था, विशाल माटकर था मेरा दोस्त, जिसके साथ मैंने बाद में 3AM भी की. उसने ब्लड मनी बाद में बनाई थी कुणाल के साथ. He was the chief AD on आवारापन. And when I reached there, and he said, "Ki you have to screen test this part," and the part was fantastic. And I said, "Okay." So you have to understand, when people say nepotism, na, we have faced nepotism. ये बच्चों ने आज कोई nepotism face नहीं किया है. I was the first outside actor of television to do the kind of role that I did for आवारापन. Nobody got roles in films. हमारे टेलीविजन से बिल्कुल नहीं मिलता ही नहीं था और अलग ही जोन था. तो मैंने जब वो स्क्रीन टेस्ट दिया, इट वाज अ 1 पेजर और मेरे लिए तो बहुत आसान था बिकॉज हम लोग टेलीविजन कर रहे थे. तो मैंने 2 सेकंड में सीख लिया, बोल दिया. मैं गाड़ी में बैठा हूं, जो मैरियट से मैं बच्चन साहब के घर से लेफ्ट मारा है मैंने, उनका फोन आ गया, व्हाट आर योर डेट्स. मैंने कहा फॉर व्हाट. कहता है फॉर द रोल. मैंने कहा आई गॉट इट. तो आई सेड यार ये तो पागल है. तो आई सेड कैन यू जस्ट कम बैक एंड टेक द स्क्रिप्ट. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड माय माइंडसेट एट दैट टाइम. मैं कहा कि ठीक है, मैं किट्टू सब जानती है कर रहा था और मनीष गोस्वामी ने बोला था कि भाई अब पूरा शो तेरे ऊपर है, तो अभी हम होर्डिंग लगाने हैं हमें सारे, तो प्लीज ना तू प्लीज हमें डेट्स देना 6 महीने के लिए. एंड वी आर मेकिंग वेरी गुड मनी. तो उस जमाने में भी 15-20 हजार आप दिन का कमा रहे हो, 2007 में यार लाखों रुपए कमा रहे हो. तो टेलीविजन वॉज ब्रिलियंट वर्ल्ड फॉर अस. और फिल्म में कोई पैसा नहीं मिलता, फिल्म में जीरो. यू डोंट गेट एनी मनी इन फिल्म. आज भी नहीं मिलता. एंड आई रिमेंबर कमिंग बैक और उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट दी. मैंने स्क्रिप्ट ली और उसमें रॉनी जो मेरा कैरेक्टर था, दैट आई स्टार्टेड रीडिंग द स्क्रिप्ट. 300 पेज की स्क्रिप्ट में 150 पेज तो मेरे ऊपर थी. मैंने कहा ये कैरेक्टर आपने शायद गलत बोल दिया है, ये कोई और कैरेक्टर होगा. ही सेड नो ब्रो, द फिल्म इज अबाउट यू, इमरान हाशमी एंड आशुतोष राणा. और आशुतोष राणा का छोटा रोल है. मैं कहा रियली. कहता यहाँ घर जाके आप प्लीज रोड टू परडिशन देखिए. द फिल्म वाज बेस्ड ऑन दैट. That was Daniel Craig, Paul Newman, and Tom Hanks. And I played Daniel Craig's role, who was the Bond. It was madness. So I suddenly went back, and I remember going back, and I then went to Taj Lands End to try and understand what the hell is going on. मैंने कहा यार ये तो proper film आ गई. You have to understand, this is 2006. Nobody knew what film was. There was no Instagram. There was no random person जो ऐसे टीवी कर रहा है, उसको इतनी बड़ी फिल्म नहीं मिलती थी. वो मिलता ही नहीं था और ऐसा होता ही नहीं था. तो मैं बैठा हूं वहां पे और मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं. मैंने कहा यार ये तो मुझे करनी पड़ेगी, बट इसको करने के लिए 50-75 हजार रुपए मिल रहे हैं, जो मेरा एक दिन का खर्चा है. तो मुझे ऑब्वियसली मनीष गोस्वामी को बोलना पड़ा कि यार अब मैं किट्टू तो कर नहीं सकता. सो आई रिमेंबर गोइंग टू महुआ एंड स्पीकिंग. शी वाज अ क्रिएटिव डायरेक्टर. आई सेड सुनो मुझे ये करना है. कहती तुम यार वाट लगा दोगे हमारी, यार शो बंद हो जाएगा. तो फिर मैंने अपने बाकी को एक्टर से बात की. यार मैंने कहा तुम लोग, आई डोंट वांट टू पुट यू इन अ स्पॉट, तुम लोग बताओ अगर तुम लोग बहुत प्रॉब्लम हो रही है तुम मेरे को ऐसे मरवा दो ना सीरियल में. तो उन्होंने मेरे को मरवा दिया फिर सीरियल में. कहने का आई एम रियली सॉरी बट आई हैव टू डू दिस. एंड देन 1 week later आई वाज इन हांगकांग एंड आई वाज शूटिंग. एंड आई रिमेंबर अनिल दादा वाज देयर. अनिल दादा कंगना का मेकअप कर रहे थे. उन्होंने मेकअप किया तो वो कहते मैं आपका बड़ा फैन हूँ, आप बहुत कमाल के एक्टर हो, आप एकदम मार देना. मैं कहा अनिल दादा बस ठीक है, अभी एक दो सीन है. और मेरा पहला सीन था वो, एंड इट वाज इट्स एन ओपनिंग शॉट, इमरान एंड मी, एंड वी आर रनिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ हांगकांग. मैंने एक टेक में वो पूरा सीन दिया था जिसमें हम लोग डायलॉग मार रहे हैं, मैं भाग रहा हूं, मैं उसको मार रहा हूं गुस्सा और वो बच जा रहा है. पूरा यूनिट रात को जस्ट स्टार्टेड क्लैपिंग एंड आई हैड नॉट एक्सपीरियंस दिस ऑन अ फिल्म सेट ना. तो फर्स्ट डे से ही, जैसे लोग बोलते हैं ना नर्व्स, मेरा तो कोई नर्व्स था ही नहीं.
फर्स्ट डे से इतना ज्यादा मेरा वो बढ़ा दिया। मोहित ने आके बोला, अरे यार व्हाट अ ब्लडी एक्टर, ये वाओ वाओ, ऐसे उधर भट्ट साहब का मुझे फोन आ रहा था। सो इट वाज जस्ट अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। और 18 घंटे शूट करके मैं वापस बॉम्बे चले गया एंड आई कंटिन्यू शूटिंग फॉर किट्टू, सब जानती है, क्योंकि मरने के वो प्रोसेस है ना, इमीडिएटली तो ओवरनाइट नहीं मार सकते। सो इट वाज, आई थिंक आई मेड ओनली मिस्टेक इन माय लाइफ वाज आई डिडंट एंजॉय दैट मोमेंट बिकॉज़ आई वाज सो बिजी। आई वाज डूइंग 4 सीरियल्स एंड एक फिल्म बीच में आ गई थी, और हमने कभी सोचा नहीं था फिल्म इतनी बड़ी होगी। बट या इट जस्ट हैपेंड एंड आई रिमेंबर व्हेन द फिल्म केम आउट, जो नहीं चली उसकी एक अलग कहानी है, खैर छोड़ो। बट जिम में कहीं पे भी चलता था मैं, आज भी, कल मैं काल भैरव मंदिर गया हूँ, आज भी लोग देखते और अपन इतना रिस्पेक्ट आ गया था पूरी इंडस्ट्री का। एंड पीपल इज जस्ट, मतलब ऐसे देखते थे, अरे सर आए हैं जरा ये। एंड आई रिमेंबर आई वेंट टू डू क्योंकि सास भी आफ्टर दैट, बिकॉज वो कुछ समय तक वी डिडंट गेट टू मेनी ऑफर्स। तलत अजीज साहब वाज डायरेक्टिंग इट एट दैट टाइम, ही जस्ट शॉट अ फिल्म विद करीना एंड आई केम ऑन सेट एंड रोनित एंड वी वर ऑन सेट, और मेरा ओपनिंग सीक्वेंस था। तो उन्होंने कहा कि आप स्मोक करोगे क्या? मैं, हाँ कर लेंगे। तो आई रिमेंबर वी वर शूटिंग इन साकिनाका, और उन्होंने एक गोल्फ, मेरा गोल्फ का एक सीन था। मैं सिगरेट पी रहा हूँ, धुआं आता है और सामने से रोनित रॉय आता है। तो मेरे को तलत बोला कि आप क्या करोगे? मैंने कहा मतलब आप बताओ ना, आप डायरेक्टर हो। कहता है आप सलील आचार्य हो, आप आवारापन करके आए हो भाई, हम नहीं बता सकते, आपने जो परफॉर्मेंस दिया है आप बताओ क्या करना है। सो द चेंज इन पीपल्स परसेप्शन आफ्टर दैट वाज इनक्रेडिबल। मतलब कि ऐसा था कि इसके बाद में कुछ भी गंदा भी कर लूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। द इंडस्ट्री, एंड आई रिमेंबर तरन आदर्श सर का मुझे मैसेज आया था सुबह, एंड ही रोट इन गूगल आल्सो दैट द न्यू स्टार इन इंडियन सिनेमा इज हियर। इंडियन सिनेमा बोला उसने, मतलब दिस वाज नॉट मेरा घर या मेरे दोस्त। मिलाप जवेरी ने बोला था कि यार जस्ट टेल मी व्हेन यू हैव डेट्स, विल डू अनदर फिल्म। एंड दीस वर रियली बिग नेम्स, एंड दैट वाज सडनली टॉकिंग अबाउट मी, एंड आई वाज शॉक्ड। And there was no PR at that time. There was nothing at that time. So it really changed the game. Of course, things didn't work out as planned, but it was an incredible experience. Even today, the amount of respect I get from the industry, those Ranbir had seen Avarapan at that time. I remember he had done Savaria. And it was, I didn't have to introduce myself to any film actor. They all spoke to me like, भाई तू already पहुंच चुका है वहां पे, हम तो अपनी जर्नी पे हैं। And it was a very different world that. मूवी के बाद जैसे कि अभी आपने ट्रेलर लॉन्चेस वगैरह ये सब आपने कब शुरू किया था? ये क्या पहले? Like this, I started trailer launches in India. 2012 is Student of the Year. So I remember उससे पहले मंत्रा ने किया था बैंग बैंग के लिए, 2 दिन गया था वो ऋतिक के साथ में। But then Karan called me and said कि यार can you do Student of the Year? तो करण की टीम में एक प्रवीण था and he had said this. And I remember we went to Sophia's and I was launched Alia and Siddharth and Varun to the public first time. So when I came on stage, and this is documented by the way, the crowd cheered more for me than they did for the others. So then for Varun, Siddharth and Alia, because they didn't know them, obviously, right? And they obviously knew me at that time, right? So the crowd went mad. And when we got off stage, Karan was there and he said, you are not going anywhere. You are now booked for 2 months with us. I said, for what? He said, because I need you to sell them. So that's how film promotions in India started. Before that, it had never happened. So I went for a 40-day tour with them and it was just all over the place. It was fantastic. And of course, Karan Johar से मैंने इतना कुछ सीखा, how marketing for a film needs to be done. मतलब मुझे याद है जब हम पहले shows के लिए आते थे प्लेन में, they didn't know them. They used to call सिद्धार्थ मल्होत्रा, पुनीत मल्होत्रा का भाई, महेश भट्ट की बेटी and डेविड धवन का बेटा. Nobody knew them. Cut to, as the promotion started increasing, Karan started coming and he said just use me, it's fantastic. He would negotiate front page of magazines में मैं आ जाऊंगा. He said I'll dance Radha Radha. मैंने कहा वाह यार, he'll dance, and he just was, I mean, you want to do a film, you do a film with Karan Johar, man. Unbelievable. मतलब I was just an anchor, it was not required. I did many films with them after that, of course. And I remember, even मेरा क्या खाना होना चाहिए, ये सब वो रेडी करते थे. I mean, I remember रणबीर और दीपिका, वो नहीं, उनका वो हैंडल रख रहे नहीं, अलग से मेरा भी चल रहा है भाई, आप क्या लोगे ये, बिकॉज वी टू गो ना प्राइवेट जेट, सो इट वाज ब्यूटीफुल. मैं तो अपनी जिंदगी में अपने प्राइवेट जेट में गया नहीं था. तो आई सेड वाओ यार, ये तो बहुत सही है. मुझे तो पता भी नहीं था कि दूसरा एयरपोर्ट होता था, सेंटा क्रूज में एयरपोर्ट था ना, जू वाला. तो हम लोग वहां से आते थे, मैंने कहा ये तो बहुत ही अलग है. सो रणबीर बोलता था टुमारो व्हाट टाइम यू वांट टू गो, 8 o'clock, ओके वील गो 8 o'clock, ऐसा होता था. सो इट वाज अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड लाइक आई सेड, मैंने कभी फोटोज नहीं लिए, सब थोड़े से हैं, बट आई वाज लिविंग सो मच इनटू दैट ना, आई डिडंट नो हाउ एल्स टू लिव.
मुझे पता ही नहीं था और दूसरी जिंदगी क्या होती है. So that's how it started and went on till गोरी तेरे प्यार में. Okay. गोरी तेरे प्यार में was the last film where they said कि this city tour promotions required because actually कोई काम नहीं था, मेरे को फ्री पैसे मिल रहे थे, सच है. But it was there and उसके बाद वो चला and then Karan ने actually मेरी दुकान बंद की. He started hosting himself. Yeah, Karan just started hosting himself only then. Because Karan that time started to become very popular with Jhalak Dikhla Cha as a judge. So then he started hosting himself. I said, यार हमारी दुकान बंद कर दी है. So yeah, of course he's a brilliant host, but trailer launches भी खुद ही करने लगे वो. बट अभी आप सलमान सर के साथ करते हैं. Yeah, so Salman Khan is the only one that I do now. मतलब that is another experience. उनकी जो टीम है शमीरा से लेकर साथ, they were fantastic. I think people misunderstood. Manish does a lot of his shows outside, of course, because वो अच्छे दोस्त हैं. But I think he doesn't listen to too many people on stage. He listens to me. And इकलौता ऐसा प्रोडक्शन हाउस है, हर साल बोलते हैं इतना पैसा है, चलो बढ़ा देते हैं. खुद ही बढ़ाते रहते मेरे पैसे. मैं कहा यार अभी बहुत ज्यादा दे रहे हो आप. नो यू डिजर्व इट. मतलब हम तो प्रे करते थे कि 10 शो साल के हो जाए सलमान के साथ, नई गाड़ी आ जाएगी. So it's beautiful to be with him. But I think it just मेरा जो, how should I say it? I was not as big a host as people assume I am. Because they just assumed कि अगर सलमान के साथ ही 12 साल से शोज कर रहा है तो ये सबसे बड़ा होगा. है कुछ नहीं. But I think लोग बहुत डरते हैं भाई से, on stage. And he can be moody at times, but it's great. But he's so much fun. And I think we had a great chemistry with the two of us. There's an interview of mine that I did for Bajrangi Bhaijaan, which is to date, I think, the best interview Salman has ever given. I spoke about the biryani in his house. ये कौन सी बिरयानी है, कुछ नहीं है, सब बताया उसने मुझे. It was incredible. I loved him, and I do love it. I really worked at close quarters with him, with Shah Rukh sir, with everyone. There is nobody who's like Salman Khan, and I think he knows that like it's crazy. I'll tell you, ये अभी सोनम कपूर जिसमें थी, प्रेम रतन धन पायो. So I remember वो late थे, and there was a huge journalist crowd there, and वो late था. तो he said कि तूने कॉफी पिया है क्या? This is on backstage. I said सर वो सब तैयार है. अरे वो तैयार है, ठीक है ना, तू चिल कर. हम लोग स्टेज पर ना जमीन पर बैठ गए और वो यू कैन सी इट ऑन यूट्यूब. हम जमीन पर बैठ के बात कर रहे हैं. उसके बाद मेरा इंटरव्यू था B4B पर उनके साथ में, and I was really hungry. We went to Film City. He stopped the shoot. He sent his car home to get me protein bars and to get me jackfruit. इससे शूट होगा यार, पहले ही खाएगा तब हम शूट करेंगे. And the car got me food और इतना सारा खाना लेके आए. तो सोनम ऐसे खाना पकड़ के बैठी हुई थी, हम लोग खा रहे थे सेट पे. And he didn't have to do that. And that's why I think that my respect for him went up, because of course he's misunderstood to a certain extent, where you don't know what you can say, but you're not supposed to say anything around him. You're just supposed to get the vibe. और वो मेरा सलमान सर के साथ हुआ. But like I said, पब्लिक का परसेप्शन ये हो गया कि ऑब्वियसली इनका बहुत कुछ होगा. बिल्कुल नहीं है, बट वो डरते हैं. एंड आई थिंक मेरा उससे बहुत फायदा हुआ. मेरे को चिकन भी फ्री मिल जाता था. मैं तो एक दुकान में गया था, अपने दोस्त की बता रहा था कि मैं नथिंग बट चिकन में शॉपिंग कर रहा था. तो एक बंदा आया, सर. तो मुझे लगा पहले कोई और सर की बात कर. मैं पीछे देखा, सर आप. मैंने कहा हाँ नमस्ते सर, आप सलमान भाई को बोलना कि सारे ना मैंने फिल्म सिटी के बाथरूम मैंने बनवाए हैं. मैंने कहा वाह यार, वेरी स्वीट ऑफ यू. तो मैं चिकन ले रहा हूँ, अपना ये सब ले रहा हूँ. तो मैं जब पे करने आ रहा हूँ, 3-4 हजार का बिल था. नहीं सर, ये तो कस्टमर था बाय द वे. मैंने कहा मतलब आप पे नहीं कर सकते. मैंने कहा क्यों? आप सलमान भाई के भाई हो. मैंने कहा अरे इसका मतलब क्या है? तो ही डिडंट लेट मी पे. तो सोचो कि एक्चुअली जो उसके करीब है क्या मिलता हो उनको. मैं तो अपनी चिकन लेके चले गया गाड़ी में. कुछ देर के बाद मैं आई आल्सो रियली मैनेज्ड टू टॉक विद हिम. सो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. इट्स ही इज जस्ट नेक्स्ट लेवल मैन. एंड नाउ माहौल थोड़ा अलग है, but I've had the funnest times on stage with him, man. मतलब nobody can do फिरकी like he can. Nobody. तो सर अभी जैसे कि सोशल मीडिया आ गया है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट, इतने सब एप्लीकेशंस आ गए हैं. तो अभी सोशल मीडिया पे भी बहुत अपने आप को प्रेजेंट करना रहता है. तो आपके लिए क्या ये डिफिकल्ट है या फिर क्या नया? नहीं हूँ. I have no interest in social media. I never cared. It is only a way for all my shows. जो मैं सारे shows करता हूँ वही डालता हूँ. You see, I had a period which I think you were also there when I started my TikTok. Yeah. So I used to have fun. My TikTok account blew up, as you all know. We were trending every day, millions and millions. एक बाला का वीडियो हमने किया था. अक्षय सर मेरे सर पर तबला बजा रहे थे. 25-30 मिलियन व्यूज आ गए थे उसके. फिर एक और मैंने कोई 100 मिलियन व्यूज आ गए थे.
सो हमें मजा आया था बस, और उसकी वजह से मेरा इंस्टाग्राम ब्लो अप हो गया. आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन. आई डोंट रियली लाइक टू टॉक अबाउट, आई डोंट टेक पिक्चर्स, आई डोंट लाइक टू शूट माई सेल्फ, आई जस्ट डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट माई लाइफ. वो इत्तेफाक है कि मैं एक पब्लिक फिगर भी हूँ, बट आई एम नो लॉन्गर एज मच इन द पब्लिक एज आई यूज्ड टू बी. एक जमाना ऐसा था, अगर मैं शायद उस समय एक्टिंग कर रहा था और अगर ये इंस्टाग्राम तब होता तो बहुत कुछ करना पड़ता, लेकिन अब मैं कुछ करता नहीं हूँ. मैं सिर्फ शोज मेरे डालता हूँ, एंड आई एम वेरी ओके विद दैट. आई हैव नो इंटरेस्ट इन बीइंग आउट देयर. इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड. बट यार ये आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट यू नो विदाउट साउंडिंग पॉम्पस, 90% लोग इस इंटरव्यू में बोलेंगे कि है कौन बेटा, लेकिन जब आप जिस रास्ते पर चल रहे हो ना, वो रोड हमने बनाई है. सो यू नो, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, द स्टारडम दैट वी हैव सीन ना, नोबडी कैन सी नाउ. बट आई रिमेंबर डूइंग अ शो इन रायगढ़ एंड इन जयपुर. मैं, हुसैन, निका पाजी, एबी, एबी एक सिंगर था. ये शो होता था 3 दिन का, जिसमें सिर्फ औरतें आती थी. रेनबो एक टेलीफोन प्रोवाइडर है, वो करते थे. 20,000 औरतें आई थी. मेरे कपड़े फाड़ दिए गए थे. मैं तब क्यों कर रहा था, मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए थे. ये जस्ट पिक्चर दिस, आई एम रनिंग, 100 पुलिस लेडीज मेरे पीछे भाग रही हैं, उसके पीछे 500 की जनता पीछे भाग रही है. मेरे को मीकाबाजी ने बचाया उस दिन, नहीं तो बहुत कुछ हो जाता. सच बोल रहा हूँ. आई वाज शॉक्ड कि मेरे शर्ट पैंट सब, मैं प्लीज प्लीज करके ऐसे भाग रहा था. हमने ये स्टार्टअप देखा. और उस समय क्योंकि का अगर मेरा एक शॉट भी आ जाता था, इट वाज मैडनेस. यू कैन नॉट अचीव दैट. लाइक यू कांट हैव सुपरस्टार्स लाइक सलमान एंड ऑल नाउ. नेक्स्ट लेवल, द स्टारडम दैट Gomzi, Hiten, Smriti ji, all of these people I've seen now. Karan, Vipasha's husband, you know, the stardom that they have seen, you cannot match that. I don't care how many followers you have. We didn't need followers. We used to run to Juhu Beach to have a chuski. किसी ने देख लिया भाई, वही खत्म. हम एयरपोर्ट पर जाते थे तो लाइनें नहीं बन जाती थी हमारे लिए यार. आई डिडंट हैव टू डू बिजनेस क्लास. वो अलग से फर्स्ट क्लास लाइन हमारे साइड पे ले आते थे. यू नो, सो द स्टारडम दैट वी हैव सीन एंड टेलीविजन पीपल, Shweta Tiwari, my God, the stardom that I have seen, the stardom that she has seen, yaar. So you can't even imagine all the big stars, you know, before, even when Balika Badu came out, 2012-13 के बाद ये सब stardom खत्म हो चुका है. उससे पहले जो हमने देखा है ना, और मैं तो बहुत छोटे लेवल पर था स्टार यार, I was just a medium level star, but I have seen also that level of stardom because of this. And it was not just here. Before you were London, South Africa, America, it was madness. So, you know, social media is just to show that you have something, यार. तो मैं थोड़े अपनी गाड़ियां और बंगले ये सब डालना शुरू कर दूंगा यार, मतलब. सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, और ये गेम आप नहीं खेलो. मेरा ये एडवाइस है. अगर आपका सिर्फ ये गेम है खेलने का ना, तो खेलो. मेरे पास भाई ये गेम नहीं है सिर्फ. तो मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि आज मेरे को 10 लाइक नहीं आएंगे, क्योंकि मैं 44 साल का हूँ. 20 साल का बच्चा मुझे कैसे जानेगा बेटा, जब आप पैदा ही नहीं हुए थे, जब मैं रिटायर कर चुका था टीवी से, आप पैदा ही नहीं हुए थे. ये स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है. 2005, you were not born when we were all hoardings. How will you know who we are? Correct. Absolutely. So it doesn't matter, you know, but there's a new generation that is there and it works, and people have teams, which is great. But it's also fake. None of the likes are real. I run an agency, man, and we run advertising for agencies. Everything is fake. 80% of every single every single actor has bought followers. Every single one of them. Okay, so we don't even, like, it doesn't even matter. The only guys that have the true real followers are the YouTubers and the gamers. They are next level and they are the only ones. PewDiePie across the world is also very big, and Mr. Beast and everyone. All of those guys are big. India mein Bhuvan and Mythpat and Triggered Insan and all of these guys, YouTubers are huge. Nobody else in India is big. Trust me on this. I've done podcasts which have had trended all over the world. I was Spotify's first podcaster in India. First. Gaurav Kapoor, me and Harsha Bhogle. And we saw who was trending. हमने सारे बड़े एक्टर लगा लिए थे. आप जाओगे, आप देख लो. Nobody trended except the YouTubers. That's the reason why YouTubers are so big today. उनकी real following है. Absolutely real following है. आपका क्रिकेटर्स के साथ क्या इंटरेक्शन रहा है? सचिन तेंदुलकर यार, because we did shows for 12-13 years यार. एक तो मैं चिपक जाता हूँ ना, मेरे को कोई निकालता नहीं है, एक अच्छी बात है. I have a real genuine love for them, and yeah, we do a lot of cricket shows also. Yeah, I actually won Harsha ki Goj back in the day in 2004 ESPN. And Wasim Akram and Parizad Zorabin were there and they told me कि यार तू ये मत कर, तू तो ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्टर है. और ESPN को बहुत गुस्सा आया था मुझ पे, क्योंकि उन्होंने पूरी स्टोरी ये बनाई थी
कि कैसे ये एक्टर ने छोड़ के अभी एक क्रिकेट कमेंटेटर और होस्ट बनने वाला है, एंड वो एक्चुअली झूठ था. इट्स अ वेरी बिग शो, हर्षा की खोज, जो बताया गया था हमें कि हर्षा छोड़ने वाला है, और उसने नहीं छोड़ा. एंड दैट्स व्हाई वसीम अकरम ने बोला था कि यू डोंट प्लीज से नो टू दिस, तो जा ही मत. तो मैं गया नहीं बांग्लादेश कमेंट्री करने, और ये मुझसे बहुत गुस्सा हो गए, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट थैंकफुली साइन नहीं किया था. सो आई हैव ऑलवेज बीन अ क्रिकेटर. यार माय फादर वाज विद ITC, सो आई हैव सीन द 87 वर्ल्ड कप लाइव. I was in London when I saw the 92 World Cup, and I saw so much. So I had a great knowledge about cricket also. So I've loved cricket. मेरी एक ही लाइफ की रिग्रेट थी कि मैं IPL नहीं किया मैंने, बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेशंस. अदरवाइज या इट वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट वर्ल्ड फॉर मी. बट सलील, जैसे कि अभी आगे आप क्या प्लान कर रहे हैं? यार मुझे ना अभी बिजनेस चालू, मैं ना एक्चुअली मैं रोड, यार आई टेल यू व्हाट, आफ्टर यू रीच अ सर्टेन स्टेज ना, यू रियलाइज दैट ये सब कोई मायने नहीं रखता यार. फेम इज वेरी फ्लीटिंग यार. And you know, I've gone from VIP to general public also, you know, and it just hits your ego. I would rather make the kind of money to just buy the whole stadium. That is my only funda now. You know, money talks like I can't explain, and there are so many brilliant YouTubers now, like Samir Raina and all that is like, you know, fantastic. The game is not about making people laugh. The game is about subscriptions. He has a million subscribers that pay 60 rupees a month, make 6 crores a year. It's all about the money now in our industry. If you don't crack the money code in India, then you don't deserve to live as a creator. पूरी दुनिया आंख बंद करके पैसा कमा रही है. तो अब ये जो मूव फॉरवर्ड है, अभी ईगो बड़ा, कौन मुझे पहचानता है, nobody gives a shit. If you got the money, that's how it should be, man. And you've just got to crack the code to make the money. I have found different ways to crack the code. I've been working on various things. I don't really care if I'm seen anymore or not. Like I said कि मेरे को कैमरा के आगे नहीं आना है. मुझे कैमरा, जमीन, स्टूडियो सब खरीदना है. अब मैं इस जोन में आ गया हूँ मेरी जिंदगी में. तो या अभी मैं इंस्टाग्राम पर तब मैं डालूंगा वो हनी सिंह का जो गाना है ना, आई डोंट अब्यूज, बट या आई एम अ डैश डैश मिलियनेयर. बस मेरा वही लाइफ का मंत्र है अभी, बिकॉज आई हैव सीन ऑल ऑफ दैट एंड सो इट वर्क्स फॉर मी नाउ. सलील, अभी अगर किसी को नया कुछ स्टार्ट करना है या कोई नया आपको देख के इंस्पायर होना चाह रहा है, आपके जैसा बनना चाह रहा है, आपने कुछ ऐसी कुछ आपकी लाइफ में तो बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आपने देखे हैं, कोई नया But I haven't actually seen as many downs as people say. मेरे downs is actually laughable because I've always had 4 jobs. तो मेरा डाउन है कि 4 में से 2 नहीं चल रहे. ओके. बट मेरा कभी कोई डाउन नहीं हुआ यार. So my only funda to you is just make a lot of money and then do whatever you want to do. I've always made a lot of money, and I say that openly also. And that's the reason why I've never had any downs as such. I've always bought everything on my own. I came on my own with nothing, and I've just built everything on my own. And I've told that to you also. I said the only freedom that you can have is to make money. So if you think that you have a talent, it doesn't matter what your talent is. If you can't sell the talent, you don't exist. You know, I've learned from the biggest people, you have to be able to make even a box, and you have to learn how to sell it. Now, whether that's your talent or whether that's something you make or whatever it is you do, it doesn't really matter. In Bombay, in our industry, if you want to do something जो आपके लोग देख रहे हैं, आप गाना भी बनाते हो ना, उसको बेचना आना चाहिए. Arman Malik once told me, and it's on record, he said you need 1 crore to sell a song. 1 crore. Yeah. You can't put 1 crore into a song, don't make a song. So if you need that kind of money, where are you going to get that money from? That's what you need. So market what yourself, and yeah, that's the only way you'll do. भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप मेरे पॉडकास्ट के लिए आए हैं. और Zubey, it's not a big deal because I love you too much, and you have been with me when. So there are 3-4 people. I must take their names: Omkar, you, and Prasad. Prasad was the first one. I remember 2017. He does a lot of work for Kabaddi now. He said, "भाई आपको पता है कितने लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए?" तो मैंने कहा क्या करना चाहिए इसका, जब हम शोज करते थे. तो he started taking my pictures. He's made my first show reels. शोज पे जो रील्स होते थे उसने बनाना शुरू किया. कहता भाई एंकर से कोई ऑटोग्राफ नहीं मांगने आता, आपके साथ सब लोग आते हैं. मैंने कहा तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तो दिखाओ. I had a big problem with this. I had a problem when Archana used to tell me you must talk about yourself. आपकी आशिकी आ रही है. मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं यार, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, हमारी फैमिली ना आर्मी फैमिली से है, हम ये बात नहीं करते अपने बारे में. आप ऐसे बोलते नहीं हो कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, आज पॉडकास्ट में तेरे साथ बैठा हूं तो मैं बोल रहा हूँ. बट ये बहुत ही छिचोरापंती होती है, राइट? बट आई थिंक दैट्स व्हाट Instagram has become. But there were a lot of people that were there that helped me do a lot of work. Yeah, I mean, we were running the content of Jet Airways. He helped me so much with that.
7 years later, I'm running Air India now, you know, in-flight entertainment. And all of this happened because you guys were around me. Because I could get the work, I had the vision for it, but I couldn't execute it अगर आप लोग नहीं होते मेरे साथ में. So that's what was required. So if you all want to now start a podcast, अगर आपको 4 लोग और देख लेंगे, बाद 40 गाली आ जाएगी, तो of course यार. But इससे मुझे लगता है कि it's not like it's not a big deal anymore, you know. I mean, people are doing so much now. Podcast एक तो बहुत बड़ी चीज ऐसी हो गई है, हर कोई कर रहा है. करेक्ट. So it's just a question about hitting the right connection with the right person. Yeah. बट थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बात करके बहुत कुछ जानने को मिला. और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मेरे कोई पेरेंट आ गए उनके साथ बैठ मुझे भी ऐसा लग रहा है. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सलील सर लोगों की इंटरव्यू लेते हैं, आज मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं कॉन्शियस हो गया था कि सर से बात कैसे करूंगा. You don't have no. You're on a brilliant trajectory, and you're very young, and your skill level is very high, Zubi. So that's why, and you're very enterprising. So I'm glad that you started this also. So good luck, and may you have all the lovely guests that come, and may you become very, very viral. I don't think this interview should become viral because I've said a lot of things that not everybody should know. But yeah, everything else works very well. थैंक यू. Bye. थैंक यू. See you. थैंक यू गाइस. सलील भाई से बात करके ना मुझे तो भाई अलग ही एनर्जी आ गई है. और आई होप ये इंटरव्यू देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको भी उनके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा होगा. एंड फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल बी नायाब.